કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? ધોરણ 5 વિષય હિન્દી, પાઠ 5 ચિડિયાઘર કી સૈર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાતમાં આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી હતી. હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે શબ્દોના અર્થ, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશેની સમજૂતી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શબ્દાર્થ સમજીશું. चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं. એટલે કે ચિડિયાઘર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય એક એવી જગ્યા છે જ્યાં પશુ અને પક્ષીઓને જોવા માટે એક સાથે રાખવામાં આવે છે. બાડા ઘીરા હુઆ સ્થાન એટલે કે ચારે બાજુઓથી બંધ કરેલું ઘેરો નાખેલું સ્થળ વાડો. खोल कछुए के ऊपर का सख्त भाग જે કાચબો હોય છે તેની પીઠ ઉપર જે સખત કોચલું હોય છે તે ભાગ. लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है. एक विशेष प्रकारનો વાંદરો, અલગ પ્રકારનો વાંદરો કે જેનું મુખ કાળું અને પૂંછડી લાંબી હોય છે. હરિયલ હરે રંગવાલા એટલે કે લીલા કલરનો. હવે જોઈએ અભ્યાસ. प्रश्न 1 ऊंची आवाज में पढ़िए. અહીં આપેલા આ શબ્દો માત્ર અને માત્ર આપણે વાંચવાના છે. रक्षक, रक्षा, पक्षी, इन तीनों शब्द में क्ष समान अक्षर है. त्र से पत्र, नेत्र, पुत्र. घ्न से आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा. श्र से श्रम, परिश्रम और विश्राम. प्रश्न नंबर 2 पढ़िए और लिखिए. તો અહીં આપેલા આ શબ્દો વાંચીને નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાં આપણે ફરીથી લખવાના છે. મક્ખન, મક્ખી, મચ્છર, મગરમચ્છ, चिट्ठी, गट्ठर. प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कुछ गजब, कुछ अजब, कुछ गजब એટલે કે કંઈક નવું જાણવા જેવું. अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे की पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यह संख्या करीब 10 होती है. इसका अर्थ है कि जो તમે ક્યારે ધ્યાનથી જોયું હશે તો તમને ખબર પડશે કે નાના બાળકો પોતાની આંખની પાપણના જે પલકારા છે તે 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વાર કરે છે, જ્યારે પુખ્ત માણસો એટલે કે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં આ સંખ્યા લગભગ 10 હોય છે. हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है. આપણા શરીરને એક સમયનું એક વખતનું ભોજન જે ખોરાક છે તે પચાવવા માટે
लगभग 12 कलाकનો समय लागे छे। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दो ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। શું તમને ખબર છે કે આપણા આ માનવ શરીરમાં નાક અને કાન એ બે અંગો એવા છે કે જેનો આકાર આખી જિંદગી સુધી જ વધતો રહે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલા આ કોષ્ટક એટલે કે ફકરાને આધારે આપણે નીચે આપેલા 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? એટલે કે નાના બાળકો અને મોટા વ્યક્તિઓની જે આંખના પલકારા છે તે ઝપકવામાં, તે પલકારામાં કેટલો ફરક છે? બરાબર, તો અહીં એનો જવાબ થાય कि छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटों का समय लगता है। अपना शरीर में खोराक ने पचावा माटे 12 कलाक जेटलो समय लागे छे। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के नाक और कान 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं। अपना शरीर में नाक और कान ये 2 अंगों एवा छे कि जीवन पर्यंत थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे વધતા જ રહે છે। प्रश्न 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग उसे कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં એક પ્રશ્ન આપેલો છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ બહુ જ ધીમે ધીમે ચાલતું હોય, કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં સમય લગાડતું હોય, બરાબર, તો તેને આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ તો કાચબાની ચાલે ચાલે છે, કાચબાની જેમ ધીમે ધીમે ગતિએ કાર્ય કરે છે। પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ છે કે તેજ ચાલ ચલને વાલે को क्या कहते हैं? એટલે કે જે ઝડપથી કાર્ય કરે છે, દરેક કામ કરવામાં ઉતાવળ રાખે છે, તેવા વ્યક્તિને આપણે શું કહી શકીએ? तो इसका जवाब है तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? प्राणी संग्रहालय में जईने आपणे कया कार्यों करवा जोईए नहीं? तो चिड़ियाघर में जाकर हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए नहीं। 1, पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। शोरगुल नहीं करना चाहिए। 3, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। 4, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। કે જો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આપણે જઈએ તો ત્યાં પાંજરાની નજીક આપણે જઈને ઊભા રહેવું જોઈએ નહીં, અવાજ ન કરવો જોઈએ, પ્રાણી પક્ષીઓને ચીડવવા જોઈએ, ખીજવવા જોઈએ નહીં, અને પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ તરફ કાંકરા અને ખાવાનું ફેંકવું જોઈએ નહીં। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય।
प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાતે કોણ કોણ આવ્યું હતું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પાઠમાં સારી રીતે સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છો. તો દાદાજી અને ગીતા. तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे. बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो इसका जवाब है बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे. तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है. तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी. गीता ने किसे पत्थर बताया? तो किसे पत्थर बताया था गीता ने? गीता ने कछुए को पत्थर बताया. कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका अपना आवरण है. विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है. कातुआ यानी कि उसे गुजराती में क्या कहते हैं? काका कौआ. सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए. तो इसका जवाब है सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है. दूसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रख कर वाक्य पूरा कीजिए. એટલે કે અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે સાચો શબ્દ એટલે કે એના લખતો એના જેવો જ બીજા શબ્દો મૂકીને આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો અહીં આપણને જ્યાં પુલ્લિંગ શબ્દ આપ્યો છે ત્યાં આપણે શું મૂકીશું? સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. અને જ્યાં સ્ત્રીલિંગ શબ્દ સ્ત્રીલિંગ નામ આપ્યું છે ત્યાં આપણે પુલ્લિંગ શબ્દ નામ મૂકીને આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરી કરવાની છે. તો અહીં આપણે જોઈએ तालाब में हाथी नहा रहा है. तो हाथी की जगह उसका स्त्रीलिंग नाम क्या होगा? हाथीनी. तो तालाब में हाथीनी नहा रही है. रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है. तो ऊंट की जगह इसका स्त्रीलिंग शब्द हमें खाली जगह में लिखना है कि रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है. जंगल में मोरनी नाच रही है. तो यहाँ पे मोरनी की जगह हमें खाली जगह में पुल्लिंग वाचक नाम लिखना है. तो जंगल में मोर नाच रहा है. पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है. तो शेर पुल्लिंग नाम है. सामने की खाली जगह में हमें क्या लिखना है? स्त्रीलिंग नाम. तो शेर की जगह हम क्या लिखेंगे? शेरनी. कि पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है. प्रश्न 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए. तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसका हमें वर्णन करना है. तो सबसे पहले मैं आपको इस चित्र का वर्णन गुजराती में बता रही हूँ.
જંગલમાં ઘણા બધા ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે. ઉનમે સે એટલે કે તેમાંથી એક ઝાડ પર વાંદરો બેઠેલો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વહેતું ઝરણું પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ ઝરણાના એક કિનારે હાથી અને સસલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને બીજા કિનારે લાંબી ડોકવાળું જીરાફ અને પથ્થરોની નીચે છુપાઈને સિંહ બેઠેલો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઝરણાની અંદર જે નદી છે તેની અંદર બતક તરી રહ્યું છે. હરણાઓ ત્યાં નદીમાં પાણી પી રહ્યા છે. આકાશની અંદર પક્ષીઓ પણ ઉડી રહ્યા છે. તો આ જંગલનું જે ચિત્ર છે તે ઘણું જ સુંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. तो अब इसका वर्णन हम हिंदी में सुनेंगे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक पेड़ पर बंदर है. यहाँ पर बहता हुआ झरना भी दिखाई दे रहा है. इसके एक किनारे लंबी डोक वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है. शेर पत्थरों के नीचे छिपकर बैठा है. हिरन पानी पी रहे हैं. बतख झरने में तैर रही है. जंगल में हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है और उस हरी घास पर खरगोश भी बैठा दिख रहा है. आकाश में पक्षी भी उड़ रहे हैं. यह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है. प्रश्न 4. चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो आ जो चित्र आपेला छे तेना आधारे नीचे आपेली खाली जग्यामां आपणे जवाब लखवाना छे. खाली जग्या जोर से गरजा. तो यहाँ चित्र में से कौन सा ऐसा प्राणी है, जानवर है जो गर्जना कर रहा होगा? तो यहाँ पे है शेर. तो शेर जोर से गरजा. चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था. तो यहाँ पे एक सींग वाला कौन है? गेंडा. तो चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था. तालाब में खाली जगह तैर रही थी. तो इसमें से बाकी बचे 2. तो इन दोनों में से तैरना कौन जानता है? बतख. तो तालाब में बतख तैर रही थी. हरियल तोता टेंटे करता था. प्रश्न 5. चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए. तो यहाँ पे चित्र के सामने नाम दिए गए हैं. सही नाम पहचान कर हमें इसके पास में दी गई खाली जगह में लिखना है. यह चित्र है शेर का. मूंगफली,
केला, गेंडा, भालू, मछली। मगर, गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને શબ્દોના અર્થ વિશેની તમને સમજૂતી આપવામાં આવી છે તે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની PDF ફાઇલ તમને મોકલવામાં આવશે. બરાબર? તો આ પાઠમાં તમને સારી રીતે સમજ પડી ગઈ હશે. થેન્ક યુ.